Okay, let's continue the lecture again. We have chosen two real numbers, x and y. Let x and y be two real numbers. Let x, y belongs to R. So choose sequences Rn and Rn dash respectively. Rn dash of rationals. Okay, of rationals such that limit of Rn is x and limit of Rn dash is y. Now let us see f of x y. F of x y, this is equal to f of limit of Rn, limit of Rn dash. It's continuous in first variable at each point, so it's equal to limit of f of Rn, then limit of Rn dash. And again it's continuous in each variable separately in the second variable also, so this is equal to, or this is equal to, actually it's a double limit. So first we finish first limit. So to avoid this confusion, let's do it for first variable only. This Rn is a rational number. It's equal to limit of Rn. Okay, limit of Rn times f of 1, then limit of Rn prime. Okay, limit of Rn is x. It's x times f of 1. So it's equal to x times f of 1, then there is limit of Rn prime. Now again it's continuous in second variable. It's x times limit, okay, limit of Rn prime exactly. Rn भी बाहर आ जाएगा because Rn is a rational number. F of 1 1, treat this as constant c, and this limit is y. It's c times x, okay, c times, where c is equal to f of 1 1. So general case आप खुद कीजिए. So general case जो है इसका, that is an assignment. Okay? That's very simple. आपने देखा टू वेरिएबल्स के लिए हम कैसे हमने इसको किया, तो n वेरिएबल्स के लिए भी इजीली आ जाएगा. Okay, now let's prove the theorem जिसमें हम इसका यूज करेंगे. Let mu be a translation invariant Borel measure. Let mu be a translation invariant Borel measure. Translation invariant Borel measure on Rn. So it's a measure from Borel algebra. Okay, Borel algebra generated by the open sets of Hausdorff topological space जो हमने already define किया है. Then there exists a constant c. Then there exists a constant c in R such that this Borel measure, such that mu of A is equal to c times Lebesgue measure of A. So this mu is equal to c times Lebesgue measure. So there is no any other Borel measure translation invariant other than this lambda actually, Lebesgue measure. Only one Lebesgue measure up to scalar multiple. मतलब 2 times lambda भी होगा, 3 times lambda भी होगा,
but the difference is only in this multiplying factor, scalar multiple. So there is only one up to scalar multiple. You can see up to scalar multiple it's only one. So this is true. This is true. This such that this holds for every member of Borel set. For every, because mu is different on Borel sets, for every Borel set A of Rn, Borel set of Rn. This formula is very important. Okay, प्रूफ में कुछ टेक्निकल स्टेप्स है. So let's first fix some notations. Let's first fix some notations. Okay, prove. For each x in real, for each x in R, for each x in R, this x may be positive or negative or maybe 0. Let ix, I subscript x. Okay, for each x in R, let's define this. Let's define this to be empty set if this real number is 0. ये नोटेशन है, ठीक है. आई एक्स इज 0, मतलब आई 0 जो है ना, आई 0 0 के बराबर. एंड दिस आई एक्स इज द इंटरवल, फैक्ट सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to x. 0 to x कब डिफाइन होगा? अगर x पॉजिटिव होगा, इफ x इज पॉजिटिव. एंड आई एक्स इज x to 0 इफ x इज नेगेटिव. x to 0 if x negative. ठीक है, ये नोटेशन हमने फिक्स की. नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट द नोटेशन, नेक्स्ट notation we fix for also for every, also for every n tuple x which is equal to x1 x2, it's now n tuple. Okay, it's not real number, belongs to Rn. For every n tuple belongs to Rn, let, अब मैं सिंपल इसका नाम दूंगा कैपिटल S ऑफ x. ओके, कैपिटल हर किसी x के लिए जो n टपल होगा उसके लिए मैं ये Sx डिफाइन करूंगा. ये मैं डिफाइन क्या करूंगा? दिस is equal to, I will define it as it's equal to 1. ये 1 के बराबर हो, क्या होगा? 1 के बराबर if the product of components of this n tuple, इनका जो प्रोडक्ट होगा that is greater or equal to 0. if product xi, I varies from 1 to n is greater or equal, it's greater or equal to 0. अगर ये greater or equal to 0 होगा, तो इसका मतलब है कि अगर एक ही 0 होगा इनमें से, तो प्रोडक्ट तो ओबियसली 0 होगा. तो अगर सिर्फ एक कंपोनेंट 0 होगा, उस केस में Sx ओबियसली 1 के बराबर होगा, क्योंकि उस केस में प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा. अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 0. नाउ इफ द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, 3 ही पॉसिबिलिटीज है. ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए आपने देखा, मतलब ये 1 हम देंगे. And this is equal to -1, Sx is -1 if this product is negative. तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लूँगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल फॉर
say x equal to say 1 2 minus 3 in R3, suppose in R3, then this then नहीं आ जाएगा. For this we have capital Sx is equal to, what's the product of these components? It's negative, so it's minus 6. Okay, it's negative. आपको सिर्फ साइन देखना है. Okay, it's negative, its value is minus 1. तो इसी तरह से अगर इसमें से मैं एक जीरो लूँगा, उस केस में ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ जाएगा. उस केस में Sx का वैल्यू जीरो होगा, 1 होगा, सॉरी. तो ये क्लियर होगी, ये नोटेशन भी है. Sx का मतलब क्या है. Now we are given that mu is translation invariant Borel measure. Assume that this mu is a translation invariant. Mu is a translation invariant नॉन जीरो बोरल में, क्योंकि जीरो को तो हम कुछ करना ही नहीं ना. जीरो को अगर ये जीरो होगा हर किसी सेट के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली होगा ना. सी टाइम्स एक मेजर आप सी इस केस में जीरो ले गया, नॉन जीरो बोरल मेजर. ओके, नॉन जीरो बोरल मेजर on Rn. Now we define a function f from Rn to R. हम फंक्शन करेंगे डिफाइन Rn से लेकर R तक, और हम प्रूव करेंगे वो जो फंक्शन है वो एडिटिव है इन ईच वेरिएबल, और वो कंटिन्यूअस भी है जीरो पर. देन वी कैन अप्लाई द प्रीवियस लेमा. उसके बाद हम वो सी वहाँ से आ जाएगा. एक्चुअली सी टर्म लैम्डा ऑफ ए आपको प्रूव करना है, वो सी उसी लेमा से एक्चुअली आ जाएगा. तो उसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे. डिफाइन f from Rn to R by, let's define it by define this function by f of x1 x2 xn is equal to s of x. ठीक है यहाँ तक. s of x हर किसी टॉपल के लिए डिफाइन है ना, where this x is the tuple n tuple x1 x2 xn. okay, s of x, then mu of the product of the measure is the measure of this subset of Rn I x i. हर कोई I x i क्या है, एक इंटरवल ही है, या तो वो जीरो है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली हम ले रहे हैं. तो इट्स अ सबसेट ऑफ Rn. सो म्यू इज डिफाइंड ऑन Rn, इट्स अ सबसेट ऑफ Rn. इट्स Ix1 क्रॉस Ix2 क्रॉस अप टू Ixn. So each set, each xi is subset of R, so that means the product will be the subset of Rn. So mu of this, where this x is equal to x1, a पॉइंट है इसका, belongs to Rn. ये फंक्शन हमने डिफाइन किया. अब इसके बाद एक्चुअली प्रूफ स्टार्ट होता है. यहाँ तक तो सिर्फ आपने या मतलब ये नोटेशन फिक्स की और इस फंक्शन को डिफाइन आपने किया अभी तक. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज एडिटिव इन ईच वेरिएबल. ये हर किसी वेरिएबल में एडिटिव है. तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम सिर्फ फर्स्ट वेरिएबल का चेक करेंगे. सेकंड वेरिएबल इट विल फॉलो ऑन सिमिलर लाइन्स. थर्ड वेरिएबल के लिए वो सारी, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स. With respect to the variable, it is actually symmetric. So next we show that f is additive in each variable separately. Next we show that f is
additive in each variable separately. Each variable separately. So without loss of generality, we will prove that it is separate. It is additive in first variable. Without loss of generality, we show that it is additive. It is additive in its first variable. So let's prove it's additive in first variable. तो फर्स्ट वेरिएबल में एडिटिव प्रूव करने के लिए ओबियसली हमें x1 को एडिशन इट इज एफ ऑफ a प्लस b करना है. एफ ऑफ a प्लस b देन x2 x3 ये फिक्स रहेगी. ओके, f of a plus b then x2 x3 xn. This should be equal to f of a x2 x3 xn plus f of b x2 x3 so on up to xn. तो इसमें बहुत सारे केसेस हो गए. एक्चुअली ये सारा जो है ना इस s पर डिपेंड है. और s क्या है? s है प्रोडक्ट का जो साइन है एक्चुअली, s ऑफ x. ये इस प्रोडक्ट का जो साइन आ जाएगा ना उसी पर डिपेंड है. तो x1 को तो हमें ब्रेक करना है दो हिस्सों में. हमें लिखना है कि x1 इज इक्वल टू a प्लस b. फिर हमें इसको सेपरेट करना है, एडिटिव प्रूव करना है जब हम इसको अप्लाई करेंगे. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये सब कुछ इस साइन पर डिपेंड है, प्रोडक्ट की साइन पर डिपेंड है, तो दैट मीन इट्स ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए एंड बी. ए और बी का साइन लेना पड़ेगा हमें. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सम क्या है. तो इससे हमारे बहुत सारे केसेस आ जाएंगे. सपोज एक केस ये जाएगा अगर ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव, उस केस में ऑब्वियसली सम भी पॉजिटिव होगा. सेकंड केस अगर दोनों नेगेटिव है तो सम भी नेगेटिव है. थर्ड केस अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इस केस में सम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. वो डिपेंड कर रहा है कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. ओके, तो मैं एक केस इसमें डिस्कस करूँ जो इसने यहाँ पर किया है. बाकी केस सब देख सकते हैं, दे आर वेरी सिंपल. नाउ कंसिडर द केस हम ये केस कंसिडर करेंगे. कंसिडर द केस when a is positive, b is negative, and your x1 which is equal to a plus b is positive. इस केस को हम लेंगे. Consider this case. तो बाकी वेरिएबल्स के साथ हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ फर्स्ट पर फोकस करना. तो उनको हमें फिक्स रखना है इन वेरिएबल्स को. ओके, now we fix the other variables. Fix x2 x3 xn and let उनके लिए नोटेशन भी फिक्स हो जाएगी. and let small s, little s, let's suppose that this is equal to sin of s of x2 x3 xn. ओके, तो इसका मतलब क्या, अगर ये प्रोडक्ट होगा ना, ये n-1 एलिमेंट्स जो है इनका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होगा ये 1 है, अगर नेगेटिव होगा देन इट्स -1. तो स्मॉल s के वैल्यूज या तो 1 है या -1 है, जो हमने s डिफाइन किया है. और प्रोडक्ट ऑफ इंटरवल्स भी हमें फिक्स करनी है आगे 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 पर हमें कंसंट्रेट करना है. तो उन इंटरवल्स को मैं i से डिनोट करूँ. i इज द प्रोडक्ट ऑफ द n-1 intervals, ixi. I runs from 2 to n. It's a subset of Rn-1. This is straightforward. It's a product of n-1 copies. Okay, now let's see this set difference now. This one, the interval 0e. 0e. A is positive. Okay, this is well defined interval. इससे मैं इसको रिमूव करूंगा. a प्लस बी पॉजिटिव है ना, तो ऑब्वियसली ये 0 से आगे जाएगा. a प्लस बी
टू ए, obviously a plus b जो होगा ये होगा लेस देन a because b is negative, b आपने नेगेटिव लिया तो all the things are well defined, everything 0 to a it's well defined because a is positive, then a plus b to a it's also well defined because a plus b is less than a, and this difference is also well defined because the interval 0 to a is a superset of a plus b to a, क्योंकि ये इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये इंटरवल a plus b से स्टार्ट हो रहा है विच इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इसको मैं यहाँ रियल लाइन पर आपको बता दूंगा, फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा हम करना क्या चाहते हैं। दिस इज 0, दिस इज पॉजिटिव e, ओके, दिस हियर से a plus b because b is negative, a plus b is less than a। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0 to a जो इंटरवल है उससे मैं इस इंटरवल को बाहर निकाल रहा हूँ, इंक्लूडिंग a plus b आल्सो। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 to a plus b ओपन, zero to a plus b open, and this one a plus b interval, a plus b to a, its cross product with the I is the product of n minus 1 copies, okay, जो हमने ऊपर बता दिया, और ये एक इंटरवल मैंने और इसके साथ जोड़ दिया, नाउ इट्स द प्रोडक्ट ऑफ n कॉपीज ऑफ सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। This product this product is equal to, this product can be written as, now first I will write this as a plus interval b0 क्रॉस i, क्योंकि जब मैं कोई पॉइंट ऐड करूँगा ना इंटरवल को, इसका मतलब है कि मुझे वो हर किसी पॉइंट को ऐड करना है। ओके, दिस इज इक्वल, अब मैं इस ए को बाहर निकालूंगा, मैं अलग इसका एडिशन रखूँगा, मगर वहाँ क्योंकि मुझे इसको ऐड करना है फिर इस प्रोडक्ट के साथ, ये प्रोडक्ट है n इंटरवल्स कॉपीज का, n इंटरवल कॉपीज ऑफ n इंटरवल, तो आई कैन राइट दिस एज a0 0, it's now n tuple plus this product of n copies of the interval b0 क्रॉस i। आप इसको फिर से वापस ऐड कीजिए, जो बाकी कंपोनेंट्स हैं ना वो सारे अपने जीरो, इसका मतलब कि वो आप ऐड नहीं कर रहे हो, एक्चुअली वो वही रहेगी एज इट इज, सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होगा, वो होगा इस a प्लस, फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होगा, फर्स्ट कंपोनेंट b0 इंटरवल से है, b0 इंटरवल से, ये है ना प्रोडक्ट ऑफ n कॉपीज, सो इट्स एक्चुअली सेट ऑफ n टॉपल, जिसका जो फर्स्ट टॉपल है वो इस इंटरवल ab से है, b0 से है। ओके, तो जब मैं a00 इसके साथ ऐड करूंगा तो a तो हो जाएगा ऐड फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, और बाकी जो जीरोस है ना ये हो जाएगी ऐड बाकी n-1 कंपोनेंट्स के साथ, उनके साथ एक्चुअली आपको ऐड कुछ करना ही नहीं है, तो इसलिए ये जीरो सारे हैं, मतलब ये मेरे सिर्फ मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बस दोनों इक्वल है। तो आपने ये देखा this vector a000 plus this subset of Rn b0 cross I, it's equal to a plus, it's equal to this a plus b comma a cross I, तो ये आपने देख लिया। अब आपका जो मेजर है म्यू, इट्स ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट मीन्स अगर कोई भी वेक्टर आप ऐड करोगे ना, उस वेक्टर ऐड करने से मेजर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स म्यू ऑफ दिस वेक्टर a000 प्लस दिस सेट b0 क्रॉस i, इट्स इक्वल टू म्यू ऑफ द सेट ओनली, नॉट ये a से इस वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो वेक्टर है ना आपके इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा म्यू पर, बिकॉज म्यू इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, म्यू है ना Rn पर, यहाँ पर जो आप ऐड करोगे ना वो एक वेक्टर ही होगा, अगर रियल लाइन की बात होगी वहाँ पर कोई रियल नंबर ऐड होगा। अब नाउ बिकॉज नाउ यू आर इन Rn, so that means so the addition, the scalar ये जो है आपके पास
ट्रांसलेशन, जिस वेक्टर से ट्रांसलेट होगा वो भी एक एंटपल ही होगा, जिस वेक्टर से ट्रांसलेट होगा कोई सेट. So now we can apply this which property, translation invariant property. Now what's this? Mu of this set a plus b 0 क्रॉस i. ओके, दिस इज इक्वल टू, ये हमने देखा ये किसके बराबर है, म्यू ऑफ द वेक्टर a प्लस, एक्चुअली इट्स a प्लस b टू a है, a प्लस b टू a प्लस दिस सेमी क्लोज्ड इंटरवल b 0 क्रॉस i. And this one, it's equal to, it's mu of this vector plus set, it's equal to mu of that set, जो set वहां पर है आपके पास, b 0 क्रॉस i. रीजन क्या है? बिकॉज mu is translation invariant. Translation invariant. Mu is translation invariant. So now therefore we have therefore we have f of a x2 x3 xn plus f of b x2 x3 xn. We need to show that this is equal to f of a plus b x2 x3 xn. So let's see this. By definition, this is equal to this f, it's equal to s of that tuple. मैं tuple ही लिख दूंगा, a x2 xn into mu of the product of the intervals. Okay, mu of the product of the intervals ia cross ix2. So what's ia? Ia is positive, so ia is 0 to a. So I can write this as ia cross product I runs from 2 to n ixi, product of n copies of intervals. Okay, plus this is s of the n tuple, which is b x2 xn, then mu of, obviously first it's ib, mu of your first component है, then ix2, then ix3. So then I can write it as product I runs from 2 to n I x I. This is equal to, now a is positive है ना, a आपका positive, a positive. Okay, so the sign of the product a x2 x3 xn is same as the sign of the product x2 x3 xn, क्योंकि आप सिर्फ इसको ऐड, कौन सा, आप इसको फैक्टर सिर्फ a ऐड कर रहे हो बस, और a पॉजिटिव है, इससे x2 x3 xn का जो प्रोडक्ट है उसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसको a से प्रोडक्ट करोगे, बिकॉज a is positive. So that means this s of a x2 x3 xn is same as s of x2 x3 so on up to xn. So this is equal to s of x2 x3 so on up to xn. And this one, what's this one, mu of ia cross this is equal to, let's write it here, this is equal to mu of, what's ia? A is positive, it is 0 to a क्रॉस दिस, इसको आपने आई से डिनोट किया, इट्स आई
Now let's look at this second term. Here b is negative. Here b is negative. So that means the sign of the product x2 x3 so on up to xn and the product b x2 x3 so on up to is opposite. अगर प्रोडक्ट का साइन जो आपके x2 से स्टार्ट जो प्रोडक्ट हो अगर उसका साइन पॉजिटिव होगा, जब वही प्रोडक्ट आप लोगे b से वो साइन नेगेटिव होगी बिकॉज b नेगेटिव. इसी तरह से अगर ये प्रोडक्ट x2 x3 so on xn ये अगर पॉजिटिव होगा या अगर नेगेटिव होगा तो जो प्रोडक्ट है इन एन एंट्रीज का बी एक्स टू एक्स ये उसके इसमें नेगेटिव आ जाएगा ना, एक मतलब अपोजिट साइन होगी. अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये जो है ये एस ऑफ दिस टॉपल एंड टॉपल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एस ऑफ द टॉपल एक्स टू अपोजिट साइन because b is negative. Then mu of ib, b is negative so it's b to 0. Okay, b to 0 cross I. अब दिस s of x2 x3 xn इसको हमने स्मॉल s से डिनोट किया, नोटेशन जो हमने फिक्स की. सो इट्स इक्वल टू स्मॉल s टाइम्स, जो दोनों जगह है इट्स s टाइम्स, it's equal to s times mu of 0 to a cross I minus mu of b to 0 cross I. Now this is the mu of difference. It's equal to so this mu is a major, it's equal to mu of the set difference. What are the sets? First set is 0 a cross I minus second set is b 0 cross I. Okay, this is equal to s times mu of this difference 0 a minus b 0, ये जो सेट होगा आपके पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ ये इसके बराबर हो जाएगा. इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो. दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 0 a डिफरेंस b 0 क्रॉस i. इट्स वेरी सिंपल. बट व्हाट इज दिस 0 a b 0, 0 a minus b 0 कि एक स्टेप हमने इसमें मिस किया, वन स्टेप वी हैव मिस्ड वन स्टेप. ये जो b0 क्रॉस था ना आपके पास b0 क्रॉस i a, इट इज सेम एज जो हमने ऊपर चेक किया म्यू ऑफ b0 क्रॉस i इज इक्वल टू म्यू ऑफ a प्लस b कामा b0 क्रॉस i. तो सॉरी आप इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ मैं इसको एक लाइन ऐड करूँगा. दिस इज इक्वल टू s टाइम्स s बाहर आ जाएगा. दिस इज म्यू ऑफ 0 a क्रॉस i देन माइनस म्यू ऑफ b0 क्रॉस i जो है ना b0 क्रॉस i इट्स इक्वल टू a प्लस b. a हम ऐड कर सकते थ्रू आउट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन इनवेरियंस ऑफ द मेजर. तो ये है. अब हम सेट डिफरेंस का यूज करेंगे. सो आई थिंक आई शुड इरेज दिस होल these steps. Okay, let's erase this. Oh, this time is too fast. So I will finish only this part of it. Okay, it's minus. Okay, minus of this is equal to s times एंड यू कैन सी. अब मैं एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगा ये यहाँ पर 0 a माइनस a प्लस b a. ओके, देन क्रॉस i. दिस इज इक्वल टू s टाइम्स म्यू ऑफ एंड दिस डिफरेंस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू ऑफ 0 to a प्लस b. म्यू ऑफ 0 to
a plus b. Okay, it's closed here, closed interval. Okay, closed. Then open cross I, cross I. And this you can see it's equal to f of, इसको आप वेरीफाई करिए, it's f of a plus b x2 so on up to x. तो ये होगी इसकी ना फर्स्ट वेरिएबल में ये एडिटिव है. सो वेरीफाई दिस स्टेप, लास्ट स्टेप आपको वेरीफाई करना है बस. तो इसके बाद हम कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, हम प्रूव करेंगे ये कंटिन्यूअस जीरो पर है, देन वी कैन अप्लाई प्रीवियस लेमा. दैट विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर.